Jai Hind students, you are studying on online platform of the L1 coaching, that is L1 Aspire app, and me myself Nagen Singh, your chemistry teacher. I have done BTech from IIT and I am teaching since last 15 years, and we are just going through a very important content of the organic chemistry, that is hybridization. So till now we have we have taken 8 lectures. Now it's lecture number 9, and here we will see it's the name is hybridization. Do you know hybridization theory is given by whom? Yeah, anyone? Yeah, Jai Hind to all of you. Welcome, most welcome to all of you, dear. So any of you can tell me the name of the chemist who had given hybridization theory? Yeah, please. Ritik, Alok, Niharika, anybody else? Yeah, anyone of you can say the name of chemist who had given? Yeah, very nice, Ajay. बहुत अच्छे. Pavan Shukla, yeah. It's Linus Pauling Sahab. Yeah, Pavan, you are absolutely right. Digvijay. Linus Pauling Sahab, around 1940 to 1960, he had worked a lot in that one. It's just the interpolation of valence bond theory, and it's given by no other than Linus Pauling Sahab. And you guys might know about his performance, his achievements. He had written more than 600 journals on chemistry itself, and beside this he has written many paper on other subjects also, and he had been awarded by 2 Nobel Prize, one in chemistry 1954, another one is for Nobel Peace in 1962. It's a great, he was wonderful person. So till now we have covered a lot of things in hybridization. Now I'm just discussing with you about application of common ion effect. We were seeing application of common ion effect. I mean, if there in a solution there will be more than one type of acids, the acid which will be stronger will react first and followed by the weaker ones. Okay, so है ना, जो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा एंड देन आफ्टर फॉलोड बाय द वीकर वंस. और हमने पढ़ा था अगर कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सारे एग्जाम से पूछे ही जाते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो बच्चों, मैंने क्या बोला कि अगर कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिड. और किसी सॉल्ट को सपोज आई हैव टेकन CH3COO माइनस Na+, इट्स सॉल्ट. अगर इसको हम ऐड करते हैं इसमें तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा या क्या होगा. सपोज इट्स HA, एसिड का सॉल्यूशन है. सो द रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली एंड ओनली इफ HA is stronger acid than acid of the salt, I mean acetic acid. So तभी रिएक्शन होगा और नहीं तो नहीं होगा. And common ion effect, this is the part of physical chemistry you all have studied in your 11th class. And I have shared my 10 lectures of chemical equilibrium in YouTube channel, L1 Coaching YouTube channel. If you just go through the content of the 10 lectures, what I have shared there, I am bit confident कि you will just be confident over equilibrium, chemical equilibrium. I have to share, अभी मुझे ionic equilibrium को share करना है. ओके बच्चों, come on. So मैं इन बातों के ऊपर, what is common ion effect, अगर किसी गांव में कई दुकानें होंगी तो जो दुकान वाला ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम पैसे में ऐसे सामान बेच सकता है कि जो बाकी छोटे मोटे होंगे उनके लिए सर्वाइव कर पाना भी मुश्किल हो जाता है. राइट, हमेशा ऐसा होता है. स्ट्रॉन्गर के प्रेजेंस में वीकर रिएक्ट नहीं करता. तो एसिड में तो डेफिनेटली यही होना है, एसिड और बेस के केस में. दैट इज कॉमन एन इफेक्ट. सो लेट्स ट्राई अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग. ठीक है, ये छोटा सवाल, आप सभी लोगों को फटाफट उत्तर देना है. मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं तो आंसर जरूर करना है. नाउ व्हेन बेंजीन सल्फोनिक, ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है. दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जाम. So when benzene sulfonic acid and para-nitrofenol are treated with NaHCO3,
Na सोडियम बाइकार्बोनेट। द गैसेस रिलीज रिस्पेक्टिवली आर। जो गैसेस निकलेंगे उसके विषय में आपको बताना है। एवरीवन, सबको आंसर करना ही है। आई थिंक यू ऑल हैव रिमेंबर्ड द 4 थंब रूल्स कि आपको आंसर करना ही है। नाउ मैं टाइम शुरू कर देता हूँ और आपको टाइम देता हूँ कुल 45 सेकेंड्स का। 45 seconds में you have to find the correct answer. So time starts now. Come on everyone. So अक्षांश जी ने सी बोला, अश्विन, विशाल, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन, 45 seconds. अंकित, गलत करना बुरी बात नहीं है। टू कमिट मिस्टेक इज नॉट द ब्लंडर, नॉट टू ट्राई इज अ काइंड ऑफ ब्लंडर। सो यू ऑल हैव टू ट्राई। 5 4 3 2 1 and 0. So now time is over. Oh, Vishwajit, Ritik and Anant, Gulam, Kadir, Shivam. So it's very nice for all of you. So let's discuss it. मैं फिर बोलूँगा, सवाल की सफलता इसी बात में है, प्रश्न पूछने की सफलता इसी बात में है कि वो प्रश्न हमको सिखा पाया कि नहीं। वो सीखना चाहे गलत करके हो चाहे सही करके हो। सही करते हैं तो खुशी मिलती है, सीख जाते हैं, और गलत करते हैं चूँकि एनर्जी लगाया और गलत हुआ तो बुरा लगता है, सीख जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसकी सफलता सीखने में है। श्रेष्ठ राय, चंदा, कुलदीप, अनमोल, आदित्य, अमन, पवन। सो लेट्स डिस्कस इट। ओके, सो मैंने जो बताया आपको, ये हमारा सॉल्ट है NaSO3। नाउ वी आर एडिंग दिस सॉल्ट इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस वन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी बहाने आपको कुछ याद होते चले जाएंगे बच्चों। एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, this one is phenol, and here we have paranitrophenol. So now let's just discuss it. You know, this one is salt of, हमको पता करना है किसका सॉल्ट है। तो what we will do, हम निगेटिव वाले में H+ जोड़ देंगे। मैं आप सभी बच्चों को ये बताऊंगा कि आप लोग मेरा उंगली पकड़ के सीखो। द वे आई एम अटरिंग, द वे आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग, आई एम टीचिंग यू, एग्जैक्ट वही चीज़ें बोलना शुरू करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी सवाल आपका नहीं बचेगा। नाउ अब मैं बहुत सारे क्लास आपके लेने वाला हूँ, ऑलमोस्ट रेगुलर ही लेने की कोशिश करूँगा। सो गारंटीड कि आपके सारे सवाल बनने वाले हैं, जल्दी बनने वाले हैं। सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट फॉलो मी वेरी डिलीजेंटली, रिलीजियसली। ओके, नाउ सी। सो बच्चों, मैं एक बार कई चीज़ें शुरू बोलता रहूँगा। वैसे बोल दिया कि हमें पता करना है कि सॉल्ट किस एसिड का है। सो वी जस्ट add H+ in anionic part, so it will becomes H2CO3. And I have already shown you, I have given the pKa value in the previous lectures, and we know that it is weaker acid than both of these. Not only this, but acetic acid से weaker acid है, so it will dissolve in this one and this one. So किसी weak acid के salt को अगर हम लोग strong acid में dissolve करते हैं, अगर किसी weak acid के salt को, सॉल्ट मतलब सपोज दिस इज Na+B-, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड को अगर उससे स्ट्रॉन्ग एसिड में डिजोल्व करते हैं, सपोज HB, देन व्हाट विल हैपन, वीक एसिड विल फॉर्म। ये सॉरी, हियर आई शुड टेक HA. So what will happens, weak, this one is stronger acid than HB. So if salt of weak acid dissolve in strong acid, then what will happen, weak acid will form and salt of strong acid will be produced. You know, this reaction will takes place. Okay, so therefore here what will happens, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आज के बाद आपको मालूम चल जाना चाहिए। एंड देन आफ्टर व्हाइल डिस्कसिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नो, अभी और सारे पार्ट आने वाले हैं, तो आई विल डिस्कस कि क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है। अभी यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर अपने रिएक्ट करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है इट विल फॉर्म इट्स सॉल्ट SO3- Na+, एंड वीक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3। ये सॉल्ट जो है रिएक्ट करके बनाएगा
H2CO3, and we all know H2CO3 is in equilibrium with H2O plus CO2. So here in this reaction CO2 gas will comes out. CO2 gas will come out. Okay, in first. Similarly, this one is a stronger acid than carbonic acid because of this NO2 group. मैं आपको बताऊं कि फेनोल इज ए वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड. सो ये सब नोट करते रहना है बच्चों, डायरी में अलग से इंटरेस्ट जनरेट करो. फेनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड. मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, के की वैल्यू लिखवा चुका हूँ. बट इसके ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है बिकॉज ऑफ दिस NO2 ग्रुप. ये क्या करता है आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो यहाँ पर भी सिमिलर रिएक्शन होगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी. सो इन बोथ ऑफ द केसेस CO2 गैस विल कम आउट. सो आंसर विल बी डी. सो क्या मैं मान के चलूँ कि आगे आपसे गलतियाँ नहीं होगी? ये ऐसे सवाल आप कर लोगे बच्चों? प्यारे बच्चों, आप लोग गलती किए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. आप सीखे कि नहीं हमको ये बताओ. अगर कोई ये जानना चाहता हो कि H2CO3 प्लीज रिस्पॉन्ड मी, मीन्स कार्बोनिक एसिड ये जो है, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे. रूपाली बहुत बढ़िया, आदित्य वेरी नाइस. नाउ कार्बोनिक एसिड क्यों इक्विलिब्रियम में होता है, इफ यू वांट टू नो इट. सो ये पता है आपको, हो सकता है आज की क्लास में आपको 10 नए कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिले, तो उनको अलग से नोट कर लेना, उन पर फोकस करना है. किस चीज़ को दिमाग में डालने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं. पहला, उस पर फन क्रिएट करो, ट्राई टू मेक इट फन, ट्राई टू एम्बॉडीमेंट इट, ट्राई टू एम्बॉडीमेंट मीन्स इनकारनेट इट. उसको पर्सनिफिकेशन करो, आदमी बना दो कि वो इससे बात कर रहा है, ये कर रहा है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जिस चीज़ों को आप जानते हो पहले से, उनसे उसको कोरिलेट करो. और तीसरी चीज़ क्या है कि उस पर क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसको अलग से नोट कर लो. ये सब करके उसको आप हमेशा के लिए अपना बना लोगे. तो आपको ये तय करना है कि आज आपने जो पढ़ा वो आपको तैयार हो रहा है कि नहीं. H2CO3 इक्विलिब्रियम में होता है CO2 और H2O के साथ में. बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर यू कैन सी COOH. सो हियर बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये H+ देगा. एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल कैन एक्ट्स बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. H+ देगा तो एसिड, OH- देगा तो बेस, और इस लोन पेयर को देगा तो न्यूक्लियोफाइल. सो ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल. सो नाउ व्हेनेवर आई स्टार्ट द चैप्टर एल्कोहल, यू विल से सर ओ एल्कोहल है क्या? हम जानते हैं सर, either it behaves as a nucleophile or as a acid or as a base. So it must be in your mind, right? How? By ये H+ देगा तो acid, OH- देगा तो base, and lone pair देगा तो nucleophile. Now you can see here, you all can see from here, here we have two OH groups. So what will happen? ये H+ निकलेगा यहाँ से, और ये यहाँ आ जाएगा H+, और यहाँ से OH- निकलेगा. ये पॉजिटिव बनेगा, ये उसको लोन पेयर देगा तो ये CO2 हो जाएगा और ये H2O हो जाएगा. व्हेनेवर वी विल हैव दिस रिएक्शन इज कॉल्ड IMAB रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन. इट इज रिमझिम. वेरी नाइस बेटा, वाओ ऋतिक, वेरी नाइस. सो आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस. यस, कम ऑन. सो लेट्स डिस्कस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. I just want to make your foundation. मैं बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, so that later on हम लोग जब रिएक्शंस की बातें करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% चीज़ें हमको ऑलरेडी पता हों. सी बच्चों, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी. सो सी व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. लेट्स न्यूक्लियोफाइल. मैं इसको इतना डीप में पढ़ाऊंगा अभी कि आप बनने वाले हो हीरो, या खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन जाओगे. आप सभी लोगों को न्यूक्लियोफाइल बनाने वाला हूँ. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो रिफर्स टू न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस रिफर्स टू पॉजिटिव चार्ज. वी ऑल नो न्यूक्लियस से पॉजिटिव होता है. एंड फाइल मीन्स टू लव, टू अट्रैक्ट, हैव अफिनिटी. सो न्यूक्लियोफाइल इज अ केमिकल स्पीसीज which attract positive charge, and positive charge here refers to electron deficiency.
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीबी है, उसको ये प्यार करता है ना। या वेरी नाइस अनमोल। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीबी है, उसको ये प्यार करता है। कौन? न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल आर केमिकल स्पीसीज विच अट्रैक्ट, विच लव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फाइंड। और ये इसको प्यार क्यों करते हैं? जाकर देखने जाएंगे कि तुम बहुत गरीब हो, मज़ा आ गया, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, वाह तालियां बजाएगा, बहुत मज़ा आ गया, यस गजब, ऐसा नहीं करने जाएगा। ये उसकी हेल्प करने जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने जाएगा। बहुत अच्छे चंदा कुमारी, बहुत अच्छी बिटिया। ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। ये लुईस बेस हो गए, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो गरीब को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, उसको उलाहना और सरकेस्टिक स्टेटमेंट देने गया है। जस्ट टू हेल्प, जस्ट टू असिस्ट, जस्ट टू फुलफिल, जस्ट टू कोऑपरेट, जस्ट टू कंपनसेट देयर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या सो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। अब पता नीट में यही सवाल पूछ लेता है, वाह सो इजी, क्योंकि सर ये नहीं हो सकता, अब होता है तो हाँ नाउ। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियोफाइल वही होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। कहें हम तुम्हारी से हम लोग कहते हैं कि हमको देश को मजबूत बनाना है, भारत देश को मजबूत बनाना है। अब बहुत तेज से भारत माता के जय बोले, बोलते ही गिर गए। अरे भाई पहले खुद तो ताकतवर हो, हमको देश को मजबूत बनाना, तो पहले हमको मजबूत होना पड़ेगा भाई ना। ठीक है, आपके भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, बट यू शुड बी स्ट्रॉन्गर। यस, ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। एंड इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा? और इलेक्ट्रॉन अमीर है। कई लोग के पास पैसा होता है। मैं ऐसे कुछ पैसे वाले लोगों को जानता हूँ जो गरीब हैं। पैसे, भाई पैसा किस लिए होता है? कि अपनी लाइफ में हम संसाधनों को इकट्ठा करें, है ना, लाइफ अच्छी जिए। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, अपने घर वालों को अच्छे रहने की व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, खर्च ही नहीं करते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच हो और वो कंजूस हो, वो माइजर हो, तो विल ही और शी हेल्प एनीबडी एल्स? नो। सो इलेक्ट्रॉन रिच हो और भी कैसा इलेक्ट्रॉन? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रिच हो। और एनर्जेटिक कौन होंगे? तो या तो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, इट मीन्स लोन पेयर, या वीक बॉन्ड बनाए हैं, इट मीन्स पाई बॉन्ड। सो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच हो और कैसा इलेक्ट्रॉन? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, जो देने की टेंडेंसी रखता हो। सो आइदर इट कैन बी लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिनके पास या तो लोन पेयर हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, चलिए अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को याद भी हो गया। और हम लोग इसका मानवीकरण करके पढ़ेंगे। जैसे न्यूक्लियोफाइल से बात करें कि न्यूक्लियोफाइल इधर आओ, देखो वहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है, देखे आओ तो जाओ, ऐसे बात करेंगे हम लोग, है ना। कहे तुम लोन पे रखे हो, भागते हुए चला आया कि हाँ अच्छा हम न्यूक्लियोफाइल हैं, कह रहे इधर आओ लोन पे रखा है, क्या नहीं, कि पाई इलेक्ट्रॉन, क्या नहीं, दूध तब भाई किस बात का न्यूक्लियोफाइल है, कि नहीं हम होना चाहते हैं गलत। तो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके पास या तो लोन पेयर हो या न्यूक्लियोफाइल हो, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन हो। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लोन पेयर। जैसे H2O हो गया, यहाँ हो गया, या अमोनिया हो गया यहाँ पे, या pyridine हो गया। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो वहाँ जो लिगेंड है वो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो सभी क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एल्कोहल हो गया, दिस वन इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। ओके, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन की, या अभी मैं इसी की बात करूँ आपसे, इस तरह एग्जाम्पल हुआ, या फिर यू कैन सी OH माइनस हुआ, X माइनस हैलाइड हुआ, या R माइनस हुआ, या RS माइनस हुआ। सो दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। NH2 NH3 प्लस हुआ, NH3 प्लस हाइड्रोजनियम आयन, या नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस हुआ,
सो मैं सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और उसके पास अगर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल है. इट कैन बी आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव और पॉजिटिव. सो इफ़ यू हैव द क्वेश्चन लाइक कि कैन न्यूक्लियोफाइल बी पॉजिटिव, you will say yes, although it's very clear that we have very less number of positive nucleophiles then negative and neutral. These are in extensive amount, ना, these are in more amount. Okay, now see, ये कौन सा केस बताया मैंने जिसमें लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है. अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एल्कीन. एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल. तो आपसे केमिकली पूछे बताओ एल्कीन क्या है, तो व्हाट यू विल से, एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल. दैट्स इट. नाउ अबाउट अल्काइन. अल्काइन इज अनदर न्यूक्लियोफाइल. in benzene is nucleophile. So these all are nucleophiles. Okay, these are nucleophile because of presence of pi electrons. and इसीलिए that's why कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग पैरेलल सीखते चलते हैं ना, पैरेलल. एल्किन अब न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है और देना चाहता है. वेरी नाइस बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत बढ़िया. रिस्पॉन्स ऐसे करते रहो, ऐसे रिस्पॉन्स करते रहो तो मज़ा आ रहा है मुझे. तो ये एल्किन है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन है. तो ये इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्शन करना चाहे तो रिएक्शन नहीं होता है. न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट मेक अटैक ऑन एल्कीन बिकॉज इट्स इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल. बट अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लेके आए हम लोग तो रिएक्शन हो जाता है. तो जो अटैकिंग ग्रुप होता है ना, उसी के बिहाफ पे हम लोग रिएक्शन का नाम देते हैं. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्किन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है. देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें बोलता रहूँगा बच्चों, ये ध्यान रखना, पकड़ते जाना, बीच में नोट करते जाना. एल्किन, बाद में ये बोल दोगे सर आपने एल्किन पढ़ाया ही नहीं. हम कह रहे देखा है कर, मैं एल्किन बताया तो हूँ यार. एल्कोहल मेरा तरीका अलग है, मैं आपको अंदर से सॉलिड करूँगा, जेपी सीमेंट की तरह अंदर से सॉलिड. चलिए listen, alkene is alkene cannot give nucleophilic reactions but it will give electrophilic reaction. It means what, this alkene CH2 double bond CH2, इसके ऊपर अगर हम Cl माइनस का अटैक करें, Cl माइनस इज ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल. सो व्हाट वी विल से कि यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा. बट अगर हम इसके ऊपर H प्लस का अटैक करें जो कि इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा. ओके, सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक. वैसे मैं बेंजीन की बात करता हूँ, एल्काइन की बात मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दोनों होता है. हालांकि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, राइट. तो इसकी बातें बाद में करूँगा. न्यूक्लियोफाइल तो है, अब क्यों ऐसा है आई विल डिस्कस. ये हाइब्रिडाइजेशन का ही हिस्सा है, आई विल डिस्कस आफ्टर. नाउ सी बेंजीन. बेंजीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वी ऑल नो. सो इसलिए बेंजीन के ऊपर कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करें. मतलब यहाँ OH माइनस का अटैक करें या Cl माइनस का अटैक करें, दिस और दिस, व्हाट विल से, नो रिएक्शन. बट बेंजीन के ऊपर अगर Cl प्लस का अटैक करें तो रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन. बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है. ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी. और जो बीच में चुटकुला सुनाते जा रहा हूँ कि ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता है, ये करता है, वो करता है, वही मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वही मेन समझदारी है. उसको आपको सीखते हुए चले जाना है. जैसे मैंने कहा कि एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है एल्कोहल एक रिएक्शन करता है, उसमें अटैकिंग ग्रुप होता है. ये उस रिएक्शन में ये अटैकिंग ग्रुप होता है एंड दैट रिएक्शन इज वेरी फेमस. दैट रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन. आप सभी लोग पहले ही इसको जानते हो, एस्ट्रिफिकेशन. इन दिस रिएक्शन एल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल. इन दिस, सो यू नो आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू एस्ट्रिफिकेशन, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. But while discussing this character, I have convey you that alcohol is nucleophile in esterification reaction. Okay, so nucleophile हमको मालूम चल गया.
न्यूक्लियोफाइल जो गरीब को अटेट करे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको अटेट करे, उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। कोई कब इलेक्ट्रॉन देगा? जब उसको एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रिच हो, एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड द वन इज बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। And lone pair is a case, nucleophile can be positive, negative and neutral, although there are very less number of positively charged nucleophiles. And then we have discussed that alkene and alkyne and benzene are nucleophile. Alkene and benzene could not give nucleophilic reaction, okay, and in esterification reaction alcohol will act as a nucleophile. Great, I think आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो बच्चों, लेट्स सी नाउ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है गांव वालों, मजा आ रहा है? नाउ लेट्स सी एल्कोहल में यू नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। ग्रेट, लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। So you know the atom which donate electron, the atom which donates electron is called nucleophilic atom. So oxygen is a nucleophilic atom. The atom which donate electrons is called nucleophilic atom. Okay, so now we have to discuss what is nucleophile, and electron donors are base as well. So what is difference in base and nucleophile? Okay, now let's see. हेडिंग डालिए आप लोग हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। लेट्स सी न्यूक्लियोफाइल, तुम लोगों को बनाने वाला हूं मैं हीरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ओके, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। यू नो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस वन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर। कहें जब दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों एक ही होगा भाई। बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है, न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द स्पीसीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो देयरफॉर बोथ आर द सेम, बोथ शुड बी सेम। नहीं भाई, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों दो डॉक्टर हैं, तो एक लाइफ सेविंग डॉक्टर है, एक लाइफ टेकिंग डॉक्टर है एक किडनी निकाल लेता है दोनों डॉक्टर। क्या दोनों का बिहेवियर सेम है? बिल्कुल नहीं यार। सिमिलरली काम दोनों सेम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बट बोथ आर नॉट द सेम। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। मतलब जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल may or may not be the stronger base, okay? So you know मैं बताऊँ आपको, although all nucleophiles are Lewis base, सारे nucleophiles Lewis base होते हैं, all nucleophiles are Lewis base, but stronger nucleophile may or may not be stronger base. Let's see the example of देता हूँ आपको मैं, जैसे I minus is a very strong nucleophile, I minus is a क्या पता है आपको जिसमें मतलब I माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं, जो क्लास में करवाते हैं, उससे बाहर एक भी सवाल परीक्षा में नहीं आएगा। अभी एडवांस का पेपर हुआ, बच्चे बता रहे हैं सर ये सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, क्योंकि उसने अब पैरासीटामोल या टेम्परेचर डाउन करता है तो करता है ना भाई, तो आप पैरासीटामोल को ध्यान रखो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपसे इनफाइनाइट केमिकल्स पूछे जाएंगे। The chemicals which are in our syllabus or which will be shared by us, discussed by us, will be only the part of you. So इसको फटाफट कर लेना है ना। I minus जो है it's a very strong nucleophile but it's a very poor base. But R minus जो है it's a very strong nucleophile as well as very strong base. Okay? So I'm just conveying to, I just try to convey you is that strong nucleophile may or may not be strong base. ठीक है, चलिए। So come on बच्चों, let's discuss what is nucleophile. So nucleophile जो है ये हम वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। लाइक सपोज C डबल बॉन्ड O है, so now see here carbon attached to the group which is more electronegative than it and share its pi electron. तुम किसी पहलवान को, चलो फिर इसका मानवीकरण करते हैं, पर्सनलिफिकेशन,
और इनकारनेशन अवतार करते हैं इसका। तुम किसी पहलवान को अपनी कमजोरी बता दिए हो, ले अब बताया हो कि उस तुम्हारी रक्षा करेगा। पहलवानों क्या बोल रहा है कि चिंता मत करिए, हम खुद ही उसको ले लेंगे। तुम्हारे घर में सोना हीरा रखा हुआ है, पहलवान को बता दिए कि देखो यहाँ रखा हूँ, किसी को लेने मत देना। कहना ना ना, आई विल कंज्यूम माई सेल्फ, आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू दिस। ले तो यही हुआ, कार्बन अपने से ज़्यादा पहलवान से पाई बॉन्ड बना दिया है। ये तुमको मेरी भाषा में ऐसे ही बात करनी है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, यहाँ गरीबी आ जाएगी। वी कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये गरीब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन जो गरीब हो गया ये, तो अब इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गरीबी है। और ये कहाँ अटैक करता है? ये H+ पे अटैक करता है। बेस जो है H+ पे अटैक करता है, उसको इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, नाउ ये आप लोग नोट कर लिए होंगे ना, फटाफट नोट करते जाना है ताकि मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ। न्यूक्लियोफाइल, we are discussing nucleophile and base. Okay, now see, nucleophilicity is all about the rate of reaction. जैसे मैं कहता हूँ कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन दिया, हाउ फास्ट, इट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाउ फास्ट, किसी ने कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया, हाउ फास्ट इज ऑल अबाउट हम जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नाच कूद के आई जाएगा। सो वी मस्ट हैव द बेटर आइडिया अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ फास्ट, कौन कितना फास्ट रिएक्शन कर रहा है वो उतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो गया। एंड बेस क्या होता है? हाउ मच, कितना इलेक्ट्रॉन दिया एट इक्विलिब्रियम, हाउ मच, इक्विलिब्रियम पर कितना, हाउ मच एट इक्विलिब्रियम, हाउ मच एट इक्विलिब्रियम। मैं ये बल्कि कहना चाहूँ, अगला पॉइंट बना देता हूँ आपको मैं, कि ये हम डिस्कस करते हैं हाउ फास्ट, मतलब इसमें हम लोग रेट की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग काइनेटिक्स की बात करते हैं। सो केमिकल न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिस्कस्ड इन केमिकल काइनेटिक्स। कौन कितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इज डिस्कस इन, यह बहुत अच्छे पवन शुक्ला, वेरी नाइस बेटा, इज डिस्कस्ड इन काइनेटिक्स। बट कितना स्ट्रॉन्गर बेस है इज डिस्कस्ड इन इक्विलिब्रियम, विल बी डिस्कस्ड इन इक्विलिब्रियम। इसको हम इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, और दोनों सेम नहीं है। कितनी जल्दी दिया और कितना ज़्यादा दिया, हो सकता है कि जो जल्दी जल्दी दे रहा हो ज़्यादा भी दे रहा हो, ये नहीं भी हो सकता है। सो स्ट्रॉन्ग बेस में और मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक ऐसा बेस है LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। मैं जो बताऊंगा वो सब तुम्हें ध्यान होना चाहिए बच्चों, हमेशा के लिए समझना। मैं पेपर आउट कर रहा हूँ, मैं पेपर आउट, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन, मैं पेपर आउट करता रहता हूँ बच्चों। सुनो, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, N ऐसे आइसोप्रोपाइल N निगेटिव लिथियम प्लस। ये बहुत, ये ड्यू टू दिस बल्की ग्रुप्स, ये बल्की ग्रुप्स के होने की वजह से इसके पास लोन पेयर तो है, बट ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाता, कहीं से जुड़ नहीं पाता, लेकिन ये H+ वो छोटा है वहाँ अटैक कर देता है। तो LDA एक ऐसा स्पीसीज है जो ड्यू टू इस बल्कीनेस, बड़ा होने की वजह से इतना मोटा है कि ताकत तो है बट वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा, घुस नहीं पा रहा है। मान लो कोई आदमी यहाँ अंदर गाली दे रहा है, वहाँ बाहर खली है, खलिया हो, वो अंदर घुसना चाह रहा है, वो घुसे नहीं पा रहा है, उसमें अटक जा रहा है ड्यू टू बल्कीनेस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। सो इट्स अ बेस बट नॉट न्यूक्लियोफाइल, इट्स बेस बट नॉट न्यूक्लियोफाइल, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। ये बेस तो है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसका नहीं हो पाता है। इंडिजीनियसली इट इज़ न्यूक्लियोफाइल, मतलब नेचर वाइज तो है, बट बिकॉज ऑफ बल्कीनेस इन ग्रुप की वजह से पहुंच नहीं पा रहा। ओके, नोट कर लेना है, ऐसा परीक्षा पेपर आउट कर रहा हूँ भाई, मैं पेपर आउट चल रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज, ये मैंने कहा ना कि आपसे इनफाइनाइट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं
वो हम पढ़ा रहे हैं वही परीक्षा में आएगा, और फाइनली जाते जाते हम लोग कन्वर्ज कर जाते हैं, ये आना ही आना है, राइट। सी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, इट्स ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, कौन कितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। so nucleophilicity is directly proportional to rate of attack of nucleophile, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रेट की बात कर रहा हूँ मैं, कौन कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन दिया, रेट कितना तगड़ा है, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी to give the faster the electron, faster donate the electron, tendency to faster donate the electron, it's called nucleophilicity. Okay, and as I have already explained you, it is discussed in chapter kinetics, but ये kinetics में हमारे पार्ट में है नहीं, हायर स्टडीज में। तो हम पता है हम लोगों को kinetics में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसे देखते हैं, K से, रेट कांस्टेंट, एंड विच इज गवर्न बाई आर्नियस इक्वेशन AE की पावर माइनस EA बाई RT. So there are various factors which determine nucleophilicity. I mean activation energy, temperature, Arrhenius constant. So these factors will govern the nucleophilicity. Likewise, in case of basic strength is governed by equilibrium constant of the base Kb. But here nucleophilicity is governed by the rate constant, which depends on these factors. This is Arrhenius equation. ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए बच्चों, 4-5 नियम हैं जिन रूल्स के माध्यम से हम लोग न्यूक्लियोफाइल कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है उसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मैं वो रूल्स आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ, तो आप नोट कर लो रूल्स, क्योंकि हमारे कोर्स में ये नहीं है कि हम लोग इसको कैलकुलेट करें और के की वैल्यू निकालें एंड देन वी विल से द न्यूक्लियोफाइल हैविंग हायर मोर वैल्यू ऑफ के विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नो, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट, इट्स बियॉन्ड आवर सिलेबस, राइट। मैंने आपको इसलिए इतना डिस्कस किया सो दैट यू, अगर हम कोई चीज़ को आइडियल लेते हैं ना कि अच्छा इसमें ये है फिर ये है फिर ये है, अरे यार टाइम हो गया क्या है? मैं तो भी गाना ही गा रहा हूँ यार, इसमें घड़ी फास्ट है क्या भाई? माय गॉड, नहीं अभी 20 मिनट बाकी है, घड़ी है 1:45 बज गया यार, बेकार घड़ी इसको उड़ा फेंकते हैं यहाँ से, मैं डर गया था, फिर भी काफ़ी टाइम निकल गया, मुझे पता नहीं चला। मैं आप लोग क्लासेस अभी खूब बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारी क्लास बढ़ाने वाला हूँ, तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, बट ये सब पोर्शंस को अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। नाउ तो हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, उन रूल्स के माध्यम से जितने भी न्यूक्लियोफाइल हमारे कोर्स में हैं उनको हम लोग जज कर लेंगे, राइट। और एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि मैंने आपको जो सिखाया रेट कांस्टेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, जस्ट बिकॉज सो दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया, ओके वी शुड मूव इन दिस वे, हमको ऐसे सीखना है। नाउ सी, सो देयर आर सम रूल्स बच्चों, मैं रूल्स लिखता हूँ, आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों को पता है, वो खुद ही रूल्स बता रहे हैं और जल्दी जल्दी रूल हम लोग सीखने वाले हैं। तो टू चेक द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल वी शुड ऑब्जर्व न्यूक्लियोफिलिक एटम, we should observe nucleophilic atom. Do we know nucleophilic atom? The atom which क्या विश्वजीत भूतिया क्लास करना है, ये देखो, ठीक है, कभी मूड बनाता हूँ मैं, है ना। अभी तो मैं तुम्हारी क्या मतलब आम आदमी वाली क्लास जो है भूतिया वाली नहीं, उसी का संख्या में खूब बढ़ा दे रहा हूँ और भूतिया क्लास पे फोकस करूँगा, ठीक है, करता हूँ, तुमको मज़ा आ रहा है तो बच्चों को जिससे मज़ा आया कर लूँगा मैं, ठीक है ना बेटा। चलो, तो क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक एटम, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको देख के हम लोग कुछ नियम बनाने वाले हैं। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है बच्चों कि ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मतलब इट मीन्स H2O, H2S and H2Se. Here nucleophilic atom is oxygen, here it's a sulfur and it's a selenium. So down the group nucleophilic character increases. So we can say this is the order of nucleophilic character. Okay? बड़े आराम से, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटिया चंदा। Now rule number 2, याद है तो रिवीजन हो जा रहा है।
इसमें क्या है, अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लाइकवाइज CH3 माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, देन NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, then OH minus stronger nucleophile, then F minus. Okay, as you move from right to left, nucleophilic character will increase. ठीक है, फटाफट याद करना है, दोबारा तिबारा नहीं। और तुम्हारी खुशी के लिए बता दूं मैं, फॉर योर हैप्पीनेस, बहुत कम लोगों को ये पता है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एडवांस में IIT के नीट में JEE में तो आता ही आता है, राइट। नाउ रूल नंबर 3 वो ये है, इफ फॉर सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम, अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो जाए, अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो जाए, देन स्ट्रॉन्गर बेस विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर बेस विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर बेस विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। कब की बात कर रहा हूं मैं गाँव वालों, जब न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या हो, सेम हो जाए। जैसे देखो H2O और OH माइनस, दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है कि नहीं, बताओ। सेम है यार, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, जैसे और देखते हैं हम लोग, नोट करते रहना, मैं मजाक में बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, सीखते रहना है मस्ती में। जैसे RCOO माइनस एंड OH माइनस, देखो बोथ आर O माइनस, बोथ आर सेम, बट हम इनका कंजुगेट एसिड देख लो। जब न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो तो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। अंग्रेजी हिंदी में लिखते रहना बच्चों। तो अब ये दोनों में जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। कंजुगेट एसिड बना लो। पनिया तो न्यूट्रल होता है यार, तो पनिया के तुलना में स्ट्रॉन्गर एसिड है। जब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका बेस क्या होगा, वीक हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इज इट करेक्ट बच्चों? नीट का सवाल है ये, इस नीट 2021 में आने वाला है, 2021 ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये इसके तुलना में देखो, इन दोनों का न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बोथ हैव सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम। So to compare their basic character, we just have the conjugate acid. We just use conjugate acid, and we know this is stronger acid than water, which is neutral ना। इसके pK की वैल्यू होती है 4.76, इसके pK की वैल्यू होती है 15.56। ओ हो, इसके pK की वैल्यू जितनी कम होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। नहीं, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका बेस वीकर हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम विल बी सेम, then stronger base means stronger nucleophile, and second point is that more negative charge means stronger nucleophile. More negative charge means stronger nucleophile. Stronger nucleophile. Okay, तो क्या हुआ, अब इन दोनों की बात कर लो, दोनों में से कोई भी यूज करो रिजल्ट सेम आना है ना। यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, तो स्ट्रॉन्गर मोर निगेटिव चार्ज मीन्स स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। आप ये सोचते हो सर अभी इस वाले में जो बताए थे आप RCOO माइनस एंड OH माइनस, यू माइट थिंक कि सर इन दोनों में निगेटिव चार्ज भी तो बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है बेटा। क्यों नहीं बराबर है? दैट वी विल सी इन केस ऑफ रेजोनेंस, वी विल सी बाय यूजिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस का अगर हम लोग यूज करते हैं बच्चों तो हम पाएंगे कि ये निगेटिव चार्ज जो है, पढ़ाऊंगा आपको भी मैं, इधर पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज कर रहा है, और डिलोकलाइज कर रहा है इसलिए निगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। सो हियर मोर निगेटिव चार्ज मीन्स स्ट्रॉन्गर बेस मीन्स स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ओके, मजा आ रहा है बच्चों? मजे से कोई समझौता नहीं करना है। हमने कितने 3 रूल पढ़ लिए क्या यार। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या हुआ? यस, वाह, ग्रेट, मुझे मजा आ गया। तुम लोग पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लाइक ललबाई, ललबाई लाइक क्या बोलते हैं, कैडल सॉन्ग ना, वो क्या, लोरी टाइप का है कि मस्ती चलती रहती है। और पता है बहुत सारे बच्चों को
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से पूरी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया। वाह ग्रेट यार। और तुम्हें पता है केमिस्ट्री का पेपर एडवांस में बहुत सारा आया था, और फर्स्ट पेपर में फिजिक्स लेंदी था और सेकंड में मैथ्स लेंदी था। मतलब अगर आप केमिस्ट्री ठीक से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो मैथ्स और फिजिक्स मिला के जितना नंबर पाओगे ना, उससे ज़्यादा नंबर या कम से कम उन दोनों के बराबर तो पाओ जाओगे। दोनों मिला के जितना आएगा उतना केमिस्ट्री क्लियर आ जाएगा और कम टाइम में। इवन केमिस्ट्री सीखने भी कम टाइम में ही हो जाता है। वाह ग्रेट। बट इसको आपको रेगुलरली सीखना है। केमिस्ट्री गजब की चीज़ है यार। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? लोरी। कानों को, दिमाग को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, बस पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप करना है। और मेडिकल में वाह हलवा भाई। बायोलॉजी सबकी अच्छी होती है, केमिस्ट्री भी अच्छी कर लेना है। अब आगे फिजिक्स अच्छा कर लिए तो फिर तो बल्ले बल्ले टॉप कर जाओगे। मेडिकल कोई बच्चा अगर फिजिक्स में अच्छा है और केमिस्ट्री में, तो वो फिर अंडर 10 रैंक की तैयारी कर रहा है। बायोलॉजी तो सबको आती है भाई, एनसीईआरटी से बाहर एक सवाल नहीं आता है। एनसीईआरटी से बाहर एक सवाल नहीं आता है। टीचर के पढ़ाने से आपको वो चीज़ समझने में हेल्प मिलती है, वो आपको जानने लॉजिक बिल्डअप होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है, बट और अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट जनरेट हो जाए तो वो अंडर 10 रैंक है भाई, वो कोई रोक नहीं सकता उसको। कम ऑन नाउ सी रूल नंबर 4 क्या है बच्चों? रूल नंबर 4 ये है, अब सपोज करो सी हियर F माइनस से स्ट्रॉन्गर एसिड Cl माइनस, से स्ट्रॉन्गर Br माइनस, से स्ट्रॉन्गर I माइनस, एंड F माइनस से स्ट्रॉन्गर है OH माइनस, इससे स्ट्रॉन्गर है NH2 माइनस, इससे स्ट्रॉन्गर है R माइनस। सपोज वी हैव टू कंपेयर दीज टू, तो क्या करेंगे हम? बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर Cl माइनस और OH माइनस से कंपेयर क्या करेंगे हम? तो हमें सिंपली याद करना पड़ेगा। इसको वैसे कितने याद करेंगे? जितना मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतने ही एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे बाहर एक भी ना आया है ना आएगा। नाउ सी क्या याद करोगे कि OH माइनस सारे हेलाइड से स्ट्रॉन्गर होता है I माइनस को छोड़कर। OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल हेलाइड्स एक्सेप्ट I माइनस। I माइनस से OH माइनस वीक है, बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ओके बच्चों, और मैं और अच्छे से बताऊं आपको, तो ये NH2 माइनस से भी स्ट्रॉन्गर I माइनस होता है, लेकिन I माइनस वीकर होता है R माइनस से। गांव वालों नोट कर लो भैया। अरे बाप रे बाप, बम्पर ऑफर निकला है। अरे बाप रे बाप, पेपर आउट चल रहा है। OH माइनस सारे हेलाइड से स्ट्रॉन्गर है एक्सेप्ट I माइनस। I माइनस स्ट्रॉन्गर होगा NH2 माइनस से, बट इट विल बी वीकर देन R माइनस। बट एक बात ध्यान समझना, जो पहलवानों को इकट्ठा किया जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल के कौन कौन पहलवान हैं, अभी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। SN2 रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो सिर्फ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ही करता है। तो कौन कौन पहलवान हैं, तुम क्या बोलेंगे? R माइनस पहलवान है, NH2 माइनस पहलवान है, I माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, सर वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ओके जब बात, मुझे उम्मीद है रूल नंबर 4 आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये सब नोट कर लो बच्चों, दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा इस पूरे जीवन भर। इतनी अच्छी तरह कंसंट्रेट होकर सीखो। मेरा मानना है कंसंट्रेशन में बहुत ताकत है। इतना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर सीख लो कि अगले जन्म में जब पैदा हो तो रोते हुए नहीं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हुए। न्यूक्लियोफाइल क्या करते पैदा हो जाओ। ठीक है, नाउ सी रूल नंबर 5 क्या है? बहुत ही खूबसूरत भी है। ऑक्सीजन न्यूट्रल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर न्यूट्रल नाइट्रोजन से ऑब्वियसली कम होता है, दुनिया जानती है। लेकिन O माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर न्यूट्रल नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। अगेन N माइनस का ज़्यादा तो होगा ही होगा भाई। हम लोग पीरियड में इधर आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। देयरफॉर मतलब N माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर देन O माइनस and N will be stronger than O. It's according to our rule. Rule number 1, rule number 2 शायद हमने पढ़ा भी। बट ये जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि O माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर न्यूट्रल नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। ये 5 रूल हो गए। गांव वालों याद हो गया आप लोगों को 5 रूल? बच्चों रे, आपको 5 रूल याद हो गए? क्या बताया मैंने? ओके,
अश्विन बोल दिया ओके। दिग्विजय, हाँ भाई बोलो बोलो फटाफट, याद हो गया आपको? एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। ऋतिक, रंजन कश्यप, मेरा एक दोस्त है विशाल कश्यप, आईआईटी में था मेरे साथ, अभी अमेरिका में मजा ले रहा है, समझ रहे हो, वहीं का नागरिक बन गया है। साक्षी, आदित्य, कुलदीप, चलो कम ऑन। मैं क्या बताया, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है, यू हैव टू ऑब्जर्व न्यूक्लियोफिलिक एटम डाउन द ग्रुप। नीचे आओगे, दिमाग में रख लो, नीचे आओगे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, इधर जाओगे तो बढ़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम, तो स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, मोर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ओ माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सारे हैलाइड से ज़्यादा है आई माइनस को छोड़ करके, है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग यार, मेरा सौभाग्य है, मेरी लकी कि मुझे आप जैसे बच्चे मिले, बहुत बढ़िया। और क्या बताया मैंने कि O माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर न्यूट्रल नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। एक छोटा सा आइडिया आप ऐसा ले सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक एटम के ऊपर लेस अरे यार ये कौन ढंग से लिख रहा हूँ मैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हाँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक एटम, न्यूक्लियोफिलिक एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बहुत अच्छे अनमोल, लेस 4 नंबर हो गया तुम लोगों का, इकट्ठा कर लो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक एटम होगा तो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी तुमको याद करने में थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, देखो ध्यान समझना, नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। इधर आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज। थर्ड, अगर मैं सी और सी माइनस की बात करूं, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सो ऑब्वियसली इसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगा। और मैं बात करूं अगर आपको, तो आर माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आई माइनस से ज़्यादा है। यू नो वाई? बिकॉज कार्बन है, यहाँ कार्बन माइनस है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 एंड इसका होता है 2.65, so therefore it's less electronegative, so more nucleophilic। क्या भाई कुछ काम बना कि नहीं बताओ? आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द होल रीजन बिहाइंड दिस, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही एक कारण है। कारण तुम जानते हो ना कौन कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, ओरिएंटेशन फैक्टर, ऑल दोज, बट स्टिल दिस विल हेल्प अस टू रिमेंबर। ओके चलिए अब कुछ सवाल कर लें क्या बच्चों इसके ऊपर, गाँव वालों और शहर वालों बताओ, कुछ सवाल कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लिया जाए। चलो श्योर, साक्षी जी कह रही हैं श्योर, विपुल कह रहे हैं श्योर। ओके कौन यार, ये टाइम हुआ भागा जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चला कैसे टाइम भाग रहा है। सवाल बनाओ तो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, हियर वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू अरेंज देम, अरेंज करना है, ऑप्शन आंसर नहीं बताना है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी and time is 45 seconds. Your time starts now। बनाओ बच्चों, तो इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, जल्दी कम ऑन एवरीवन, जल्दी आंसर करो। क्या बात है सौम्य, बहुत अच्छे, तुम लोग 20 सेकंड में आंसर कर दिए यार, कमाल हो यार आप लोग, मुझे एकलव्य मिल गया हो गया और मुझे द्रोणाचार्य बना के मानो हो गया तुम लोग हैं। विश्वजीत, निहारिका, 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल के बच्चे हो आप लोग। आदित्य वेरी नाइस, मतलब मुझे मेरे एकलव्य मिल गए हैं, अब मुझे द्रोणाचार्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या बात, कम ऑन। देख भैया इसमें हम लोग देखें कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में,
सबसे कम गधा कौन होगा इनमें? अब इनको अरेंज ही कर लो, क्योंकि यहाँ F माइनस है, फिर OH माइनस है, फिर NH2 माइनस है, एंड फिर CH3 माइनस है। अरे यार ये तो बहुत गधा सवाल है। तो सबसे कमज़ोर कौन होगा? F माइनस B, फिर कौन हो जाएगा? OH माइनस C, फिर कौन होगा? A, एंड सबसे स्ट्रॉन्गर D, BCAD। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है। अरे यार विश्वजीत यादव गलत कर दिया है, CADC। अरे विश्वजीत दो बार सी कहाँ से आ गया भाई तुम्हारा? ये हमको लग रहा है कि बटन दबाने में टिपाने में गलती कर दिया है यही लग रहा है ना? नहीं, विश्वजीत है तो बड़ा अच्छा लड़का। चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इनको आपको अरेंज करना है। टाइम अब की बार थोड़ा 45 सेकेंड अगेन। कहाँ गया भाई घड़ी? टाइम इज 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है! 5 4 3 2 1 एंड 0। टाइम ओवर। लेट्स सी बच्चों, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो आप लोग। मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा हमारी पूरी केमिस्ट्री पर कमांड हो जाएगी। और केमिस्ट्री अच्छा मतलब नीट क्वालिफाई नहीं होता, टॉप करता है। IIT क्वालिफाई नहीं होता, टॉप करता है। कम ऑन, सी हियर वी कैन सी हियर ऑक्सीजन न्यूट्रल एंड ऑक्सीजन निगेटिव, एंड सर वी नो कि ऑक्सीजन न्यूट्रल में सबसे कम हो जाएगा। इट्स NH माइनस है यार। सबसे कम कौन होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये भी चेक करना जरूरी कि इंक्रीजिंग डिग्री में पूछ रहा है। इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो सबसे कम A, एंड देन O माइनस तुलना में B एंड C, ABC। आंसर इज ABC। मानव गंगवार गैंगवार नहीं ना गंगवार है ना? ओके, स्पेलिंग थोड़ी गैंगवार टाइप का है, यू नो, गैंगवार, यू नो, गंगवार। बहुत अच्छे, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। रूपाली ने अच्छा बोला, सबने अच्छा किया। विश्वजीत यादव, अमित, एवरीवन वेरी नाइस। मैं पता है आपका नाम याद करने के लिए मानो गंगवार कर रहा हूँ कि आपका नाम बड़ा अच्छा है। नाउ लेट्स सी। तो आपसे बड़ा अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। सी नाउ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये छोटा बच्चा भी इसको देख के, उसकी आंखें देखो कितनी प्यारी सी आंखें हैं। और वाह, लग रहा है बोर्ड से बाहर आ जाएगा। नहीं, वो भी सोच रहा है कितना इंटरेस्टिंग बात बता रहा है। ये कौन सी बात? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल। ये अमीन है, इट्स नॉट अमाइड, अमीन है। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। इसमें क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है बट नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। ये मैंने आपको बताया था अभी ना बच्चों। ये देखो 4 नंबर यहाँ से उठा लो तुम लोग, ठीक है? ये पढ़ा चुका हूँ मैं। नो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी छोटा सनी देओल, सही बोल रहे हो तुम अश्विन। लेकिन आंसर भी दिया करो, तुम्हारा आंसर मैं कम दिख रहा हूँ। आंसर कर तो रहे हो, थोड़ा कम कर रहे हो। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जल्दी आंसर करो आप तो। अब अश्विन, एवरीवन, टाइम इज 45 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। बहुत ही खूबसूरत है, आगे बहुत काम आने वाला है ये। कोई आ गया है क्या क्लास लेने? फाइव 4 3 2 1 एंड 0। नाउ टाइम इज ओवर। सो आप लोगों ने ट्राई भी किया लेकिन कुछ कम ट्राई किया। अच्छा, आप फेंक रहे हो आंसर। क्या है? लड्डू है, देखें O माइनस है, यहाँ पे C माइनस है, और यहाँ पे C माइनस है ना? तो और ये दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के हैं। दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, एंड सो देयरफॉर आवर आंसर विल बी
इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओ माइनस ए कम हो जाएगा एंड देन ए कम होगा एंड बी विल बी इक्वल टू सी। यस या ये विशाल तुमने गलत आंसर रख दिया बेटा, तुमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यही आप लोग बता रहा हूँ, कई बार हमको पता होता है बट हम एग्जाम में आंसर गलत रख देते हैं। विशाल दोस्त ने क्या किया है, b इज इक्वल टू ऐसे लिखा है, b इज इक्वल टू सी और कॉमा देके ये लिखा है, मतलब क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आई मीन बढ़ते हुए क्रम में। सो यू आर सेइंग कि a इज मोर देन दैट ऑफ b एंड c, गलत। तो आपको नंबर मिलेंगे कितने, -1, गलत हो गया, नो, आप इसके लिए डिजर्व नहीं करते हो, आपको ऐसे रहना पड़ेगा, या आप ऐसे कर सकते हो a कॉमा b इज इक्वल टू सी, इट्स अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके बेटा, ध्यान रखना आप सभी लोगों को। नाउ यहाँ मैं कुछ टेबल लेके आया हूँ आगे के, मैं ये क्यों बताया आपको, ऐसे रिएक्शंस हमको एरोमेटिक कंपाउंड में, हाँ गुड, हाँ हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में इसके ऊपर रिएक्शंस मिलेंगे, तो ये हम लोग सीखेंगे वहाँ पे कि रिएक्शन O माइनस न करके C माइनस करता है, वाई, बिकॉज C माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ओके, वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी बच्चों, यहाँ मैंने न्यूक्लियोफाइल को कैटेगराइज किया है by keeping in mind that these things are of very much use while we are discussing the reactions of the organic chemistry. So आप लोग इसको लिख सकते हो, very good न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, HS माइनस, I माइनस एंड RS माइनस, माइनस ऊपर है। गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये सब BR माइनस, OH माइनस, RO माइनस, CA माइनस एंड N माइनस। ओके, फेयर, ये थोड़ा उल्टा हो गया यार, FAIR, फेयर मतलब ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग न वीक। ऐसे अमोनिया Cl माइनस मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है बस। वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है, H2ORH। बहुत वीक कौन है, RCOOH। I know this category, I mean it's, you have not to mug, not to cram it out, but जैसे मुझे आप जानने के लिए मुझे याद थोड़ी करते हो, मेरे साथ टाइम बिता रहे हम लोग तो अपने आप बहुत अच्छी समझ आती हैं, तो आपको याद नहीं करना, ध्यान रखना कि अच्छा ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, वो ये कैटेगरी है, मतलब I माइनस स्ट्रॉन्गर है, आप R माइनस को यहीं रख सकते हो, R माइनस कैटेगरी में। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना बच्चों, वो SN2 रिएक्शन देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जो वीक होते हैं ना, वो SN1 देते हैं। जैसे अब ये सब गधे जो है, ये सब कौन सी रिएक्शन देंगे, SN1 देंगे, या ये सब कौन सा देगा, SN1 देगा, सब कहाँ से SN2 देगा, औकात ही नहीं है, ये सब गधा वाला है। ये जो है ये दोनों के बीच में आता है, इट ऑल डिपेंड्स की सिचुएशन कैसी है ना। तो ये सब हमको रिएक्शन के नेचर को, उसके प्रोडक्ट को समझने में हेल्प मिलता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, नाउ अब मुझे ये पढ़ाना है कंटेंट SN रिएक्शन। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन में ही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन का यूज करने वाले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, और ये मैं डिस्कस करूँगा अगली क्लास में, मतलब कल। अपना ध्यान रखिए, और जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब है पीटर साइक की, पीटर साइक्स। ये आप नहीं परचेज किए तो ऑनलाइन परचेज कर लेना, पियर्सन पब्लिकेशन का है। इसको उपन्यास की तरह पढ़ो, मतलब ऐसे नोवेल टाइप में। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, वो जो है जगदम्बा सिंह ले सकते हैं, जगदम्बा सिंह ले सकते हो आप। ये नीट वाला लेना, IIT वाला नहीं, तो ये ले सकते हो। वैसे आपको इसको भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है नीट वाले बच्चों के लिए, बट आप चाहो तो इसको ले सकते हो, कुछ पढ़ने के लिए होना चाहिए किताब, तो आप इसको ले सकते हो। और पीटर साइक्स होगा IIT के बच्चों के लिए। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुझे बहुत प्राउड है आप लोग पढ़ाते हुए, बहुत मज़ा आता है। फॉलो करो, डिलीजेंटली फॉलो करो, जो हम करते रहो, रिजल्ट आपके हाथ में है। हाँ, मैं एक बात कहा था यार तुम लोगों से, सुबह उठ के मम्मी पापा का पैर छू रहे हो, नहीं छू रहे हो, छू रहे होगे, है ना। ओके, मैं बिलीव कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।